we have to study about this black water, means the wastewater. 22nd March 2005. We always go from bigger impurity to smaller impurity. The substance which causes the water pollution. The fresh water turns into the waste water. अच्छी साइड नहीं है, but हम पढ़े इसके बारे में देखो दिख ही पड़े. There is one more place where sanitation is required. It's very very easy अगर एक बार समझ के सीक्वेंस में करो तो. Hello dear kiddos, welcome to YT's Concept Classes. I am your mentor Yogita Dhami and here we are in our 6th to 8th zone to cover the last chapter of class 7 science, that is waste water story. बेटा water की story तो हम class 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, but we have studied about this water. What is this? Clean water basically, fresh water, है ना. इसके पे आपने स्लोगन लिखे होंगे, conserve water, save water. You must have drawn the posters. Yes. Now here in class 7th we have to study about this black water, means the waste water. But why are we studying about this wastewater? What is the urgency? Peter, let's find out more about this wastewater here in this chapter. We know that water is our lifeline. It is a basic necessity of our life. And our whole earth, 71% is all water. But can we use that 71%? No. Why? Because maximum water is the saline water, which is present in ocean and sea. So how much water is there for us? Only 3%. And that 3% is known as fresh water. But problem ये भी नहीं है. If you will use that 3% of water wisely, even then it is enough for the human population. But the problem here is, out of this whole 3% of water, 40% of this fresh water is polluted in this world. And in India, this level of pollution is 70%, beta. This is the problem. है ना? जो fresh water resource इतना थोड़ा सा हमारे पास है, वो भी maximum polluted है. तो होता क्या है? We need water. Whether it is pure or impure, but we have to use it, है ना. तो maximum human population is using this unfit water for drinking and for other uses. और इससे होगा क्या? अगर हम unfit water को use करेंगे तो क्या होगा? That will become the source of many waterborne diseases and that might lead to death. Got it? And that is why you are studying about this wastewater story here. Got it? Now, but to check out this water pollution, some steps were taken by the whole world. Let's find out more about it. Steps to save this lifeline. Beta, the first and important step that was taken is, nowadays we celebrate 22nd March as World Water Day. And what do we do in that day? We spread the awareness among the people to save water, to use the clean water for drinking and for other household purpose. Okay? Other than that, there was one more step that was taken. That was a major step. And when it was 22nd March 2005. On this day, the General Assembly of United Nations proclaimed the period 2005 to 2015, means next 10 years, as the International Decade for Action on Water for Life. This is important. क्या important है यहाँ पर? First of all, when it was announced 22nd March 2005, which decade? 2005 to 2015, and what was the aim? It was the action on water for life. इसमें करना क्या था बेटा? The aim was to reduce the number till half. Now, which number I am talking about? The population which is using that unfit water. ठीक है, उसको half करना था. ये था इस पूरे announcement का aim. ठीक है? Now, you must have got idea that why we are studying this chapter. We are studying this chapter all because of the water pollution. So let's find out more about this water pollution here. बेटा water pollution की जो basic definition है ना, वो आपको पहले से पता होगी, है ना. But here in this chapter, we have to study about this water pollution with some new terminologies. So let's find out about this water pollution here. Water pollution is the contamination. See, देख नया word आ गया ना, contamination. So water pollution is contamination of water results in the change in its physical, biological and chemical properties and makes it unsafe for drinking. अब बेटा इसमें मैंने ये 3 वर्ड जो बोले, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, क्या मतलब है इसका? बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी मींस अपीयरेंस. देखो अगर सपोज वाटर पोल्यूशन हो गया तो सबसे पहले उसका कलर चेंज होगा, उसमें से स्मेल आएगी. सो दीज आर द फिजिकल चेंजेस. बायोलॉजिकल मींस when the water will be polluted, there will be the growth of microorganism. So that is biological change. And chemical change means बेटा वाटर का बेसिक फॉर्मूला होता है H2O, लेकिन polluted वाटर में H2O के अलावा भी कई सारे और केमिकल्स होते हैं which are not safe for human being. That's why. ठीक है? Now, why all this change is happening? Because of the addition of some substance. है ना? फ्रेश वाटर में हम कोई unwanted substance डालते हैं और उसी से ही वाटर पोल्यूशन होता है. तो हम उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? The substance that causes this water pollution are called pollutants or contaminants.
ठीक है. सो व्हाट इज कंटामिनेंट? द सब्सटेंस व्हिच कॉजेज द वाटर पॉल्यूशन. ठीक है. हैव अ लुक एट सम कॉमन पॉल्यूटेंट्स. हाउस होल्ड वेस्ट, ये आपको पता है घर से जो हम आफ्टर बेथिंग, आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स, व्हाटएवर द वाटर इज रिलीज्ड, दैट इज ऑल दैट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन. इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, थर्मल वेस्ट. व्हाट इज थर्मल वेस्ट? बेटा जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे वाटर बिल्कुल बॉइलिंग वाटर यूज होता है, वो वाटर यूज होने के बाद सीधे वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना, एंड दैट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन. विच वन? थर्मल वाटर पॉल्यूशन. ठीक है. ऑयल स्पिल्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स, एग्रीकल्चर एफ्लुएंस. बेटा एग्रीकल्चर में क्या यूज होते करते हैं हम? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड. जितना प्लांट ने एब्जॉर्ब किया उसके बाद रेस्ट वेयर इट गोज अगेन टू द ड्रेन्स, है ना, बारिश के साथ वो सारा ड्रेन में चला जाता है, एंड देन अगेन इट कॉजेज द वाटर पॉल्यूशन. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन पॉल्यूटेंट्स. नाउ मेजोरिटी ऑफ दीज कंटामिनेंट्स कौन डाल रहा है? ये वी, ह्यूमन एक्टिविटीज. सो ऑल दिस पॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. और होता क्या है, जैसे ही ये पॉल्यूटेंट ऐड होते हैं फ्रेश वाटर में, द फ्रेश वाटर टर्न्स इनटू द वेस्ट वाटर, एंड हियर कम्स द स्टोरी ऑफ वेस्ट वाटर. ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस वेस्ट वाटर हियर. बेटा व्हाट इज वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर मीन्स सच वाटर विच हैज बीन यूज्ड वंस एंड नाउ इट इज नॉट फिट फॉर अगेन यूजेज, है ना, उसी को तो वेस्ट वाटर बोलेंगे. देखो, द वाटर दैट हैज बीन यूज्ड वंस एंड इट इज नॉट फिट फॉर यूजेज अगेन. ठीक है. कैसा होता है ये? दिखने में कैसा होगा? समथिंग लाइक दिस. बहुत अच्छी साइड नहीं है, बट हम पढ़ इसके बारे में रहे तो देखना ही पड़ेगा, है ना. देख लो. देखो, सो व्हाट इज वेस्ट वाटर? इट इज अ डर्टी वाटर रिच इन लेदर. व्हाट इज लेदर? जो हम सोप लगाने के बाद जो झाग बनता है ना, फ्रॉथ, दैट इज वन. ठीक है. It is the dirty water rich in leather mixed with oil, black, brown water that goes down the drain from sink, shower, toilets, laundries and the other places. ठीक है. So this is waste water. Am I clear? Now, बेटा इस waste water का एक और नाम है. What is that? Sewage. Now, what is the difference between sewage and waste water? Are these two same? देखो, आप waste water को sewage भी बोल सकते हो इस क्लास में, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. बेटा यही वेस्ट वाटर समझ में आ गया. द वाटर दैट इज बीन यूज्ड वंस एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. नाउ व्हेन द सेम वाटर गोज डाउन द ड्रेन, जब हमारे घर से बाहर निकल के वो ड्रेन में चला जाता है, देन वी कॉल इट एज सीवेज. ठीक है. डेफिनेशन बढ़ते हैं. When the waste water is released from home, industries, hospitals, office, other usage, then it is called sewage. ठीक है. अब क्या ये जो घर से निकलने वाला यानी किसी जगह से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट, क्या हम उसी को सीवेज बोलते हैं? नो बेटा, एनी वाटर, एनी लिक्विड वेस्ट दैट इज गोइंग फ्लोइंग थ्रू द ड्रेन, दैट विल बी कॉल्ड सीवेज. इनफैक्ट रेन वाटर, जब रेन वाटर कभी भी रेन होती है बहुत ज्यादा, तो सारा पानी एब्जॉर्ब तो होता नहीं है. देन वेयर इट गोज टू द ड्रेन ओनली. देन इट ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ सीवेज. एम आई क्लियर? देखो, इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर एंड एनी लिक्विड वेस्ट कैन बी कॉल्ड एज सीवेज. ठीक है. अब बेटा हमको यहाँ पे वेस्ट वाटर स्टोरी यानी बेसिकली हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट यानी उसकी क्लीनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेस्ट वाटर. ठीक है. देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ दिस सीवेज. अब हम अभी से सीवेज वर्ड का ज्यादा यूज करेंगे. ठीक है. देखो सीवेज में होता क्या क्या बेटा. सबसे पहले ये इमेजिन करो कि आपके घर से जो ये हम वेस्ट वाटर रिलीज होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है. देखो, द फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी. बेटा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी का मतलब एनी इम्प्योरिटी दैट इज रिलीज्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब देखो क्या क्या हो सकता है. द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज आर ह्यूमन फिशेस. ठीक है. एनिमल वेस्ट लाइक एनिमल डंग, यूरिया एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, oil, fruits, vegetable waste, pesticides, herbicides, these all are the organic wastes. ठीक है. इसके अलावा और क्या हो सकते हैं बेटा. हम जो फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, तो वही फूड से न्यूट्रिएंट भी जा सकते हैं. तो नेक्स्ट वेस्ट इज द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सीवेज, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, है ना. अब जब ये न्यूट्रिएंट जब वाटर में जाते हैं ना, तो वहां पे अपने आप अलोन एज अ नाइट्रोजन एन और फॉस्फोरस नहीं रहेगा, वहां पे इनके कंपाउंड्स बनने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. और फिर हम उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी. सो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज लाइक नाइट्रोजन का नाइट्रेट, फॉस्फोरस का फॉस्फेट, लाइक दिस. ठीक है. तो यहां पर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी होती हैं. अब इसके अलावा बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज भी तो होंगी ना, जैसे कि बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ. देखो हैव लुक, बैक्टीरियाज लाइक वाइब्रो कॉलेरा. नाम से पता पड़ रहा है क्या क्या कौन सी डिजीज कॉज करेगा. कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, वाइब्रो कॉलेरा भी बोलते हैं. इसके अलावा सैल्मोनेला पैराटाइपी,
टाइफॉइड के लिए ये दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो दिस कॉजेज टाइफॉइड, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, डायरेक्ट नाम नहीं पूछेंगे दैट विच बैक्टीरिया कॉजेज द कॉलेरा, लेकिन व्हाट इज कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया ये नाम दे देंगे और उसके बाद उसका डिजीज पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इजी है, हिंट है उसमें ऑलरेडी, कॉलेरा यहाँ पे टाइफ ही लिखा है तो टाइफाइड, ठीक है। अदर देन दिस, अदर देन बैक्टीरिया देयर आर सम अदर माइक्रोब्स ऑल्सो, जैसे कि प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ यहाँ क्या कॉज करते हैं, डिसेंट्री, ठीक है। सो बेसिकली दीज ऑल आर द पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द सीवेज। और बेटा ये सीवेज अल्टीमेटली जाता कहाँ पर है, सारे के सारा फ्रेश वाटर बॉडीज में, है ना। इसको सारा डिस्पोज कर देते हैं लेक में, रिवर में या फिर पॉन्ड्स में, एंड देन दोज वाटर बॉडीज ऑल्सो गेट पोल्यूटेड। नाउ हाउ कैन वी चेक दिस वाटर पोल्यूशन? इफ somehow we remove this all the pollutants and then we dispose that water, तो क्या उतना लेवल का वाटर पोल्यूशन होगा? ऑफ कोर्स नॉट। अगर हम सारे पॉल्यूटेंट को ही हटा देंगे और फिर वाटर को डिस्पोज करेंगे तो पॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर। बेटा अगर हम वेस्ट वाटर को क्लीन कर लेना तो फिर हम उसको रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्लीनिंग कैसे होती है, बाय रिमूविंग द पॉल्यूटेंट्स। अगर हम सारे पॉल्यूटेंट को हटा दें बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, सो देन इट इज अ क्लीन वाटर, है ना। एंड हाउ इट इज डन, इट इज डन ऑन द मैसिव स्केल। सी दिस इज वन ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कितना मैसिव है ये, है ना। और बेटा वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट को एक्चुअल में सीवेज ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, बिकॉज है तो वो सीवेज ना, जैसे ही वो ड्रेन पाइप में गया इट इज सीवेज नाउ, द नेम इज चेंज, है ना, ओनली नेम। सो दिस इज सीवेज ट्रीटमेंट एंड इट इज डन इन मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल स्टेजेस दैट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, है ना। बट यहां पर जाने से पहले एक बार ये समझते हैं कि इसकी जर्नी स्टार्ट कहां से हुई। बेटा ये सीवेज की जर्नी स्टार्ट कहां से होती है, हमारे घर के जो बाहर पाइप होते हैं, ड्रेन पाइप, वहां से, है ना। सो फ्रॉम वेयर दिस इवेंटफुल जर्नी इज स्टार्टिंग, इट इज स्टार्टिंग थ्रू द सुअर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिग वाला सुअर, दिस इज अ सुअर, SEWER, है ना। व्हाट आर दिस सुअर्स? सुअर्स आर द पाइप विच कैरी द सीवेज, है ना। अब बेटा क्या एक ही पाइप होता है? नो, इन योर हाउस ओनली देयर आर मल्टीपल पाइप्स, टॉयलेट पाइप इज डिफरेंट, किचन पाइप इज डिफरेंट, है ना। So what happens when these network of interconnected pipe, those pipes are interconnected, then it is called sewerage. यहाँ पे देखो ये पिक्चर में दिखा रखा है, जितने भी ये सिंगल पाइप हैं those all are sewers, और ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? sewerage, है ना। So this network is actually the transport system. Whatever are we transporting? We are transporting sewage from where it is originating to the treatment plant, है ना। तो देखो it forms a transport system that carries the sewage from place where it is produced to the sewage treatment plant, ठीक है। और बेटा ये सिर्फ नेटवर्क ऑफ पाइप नहीं है, in every 50 to 60 meter there is a manhole. Can you see? ये देखो दिख रहा है ये राउंड राउंड वाले, ये these are manholes, ठीक है। Now what are manholes? Have a look here. बेटा manholes ऐसी वाली पिक्चर पक्का आपने देखी होगी, है ना। अगर सपोज कोई एक बिल्डिंग है जहां पे 4 और 5 हाउसेज आर देयर, तो वहां पर उनके लिए कॉमन ऐसा मैन होल होता है। व्हाई इट इज मेड देयर? बेटा इट इज मेड इन एवरी 50 to 60 मीटर सो दैट वी कैन चेक आउट द प्रॉब्लम फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, हमें पूरा जो नेटवर्क है, पूरा सीवरेज सिस्टम, उसको पूरा खोलना पड़ेगा, है ना। एंड दैट विल बी अ ट्रबलसम टास्क। इसके होने से क्या होता है, वी कैन चेक आउट द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। सपोज एक घर में प्रॉब्लम है तो उससे जो कनेक्टेड मैन होल होगा उस पर जाके चेक हो जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना। दैट्स व्हाई अ मैन होल इज अ कवर्ड वर्टिकल होल, नीचे अंडरग्राउंड वर्टिकल होता है ना, दैट्स व्हाई वर्टिकल होल इन द ग्राउंड, पेवमेंट और रोड अबव द अंडरग्राउंड सुअर्स, है ना। कहाँ पे होता है? मैन होल्स आर प्रोवाइडेड इन एवरी 50 to 60 मीटर इन द whole sewerage system, and manhole also provide at the junction of 2 or more sewers. जहां पे 2 या 3 पाइप मिलते हैं वहां पर भी इसको बनाया जाता है, so that we can check that कहाँ कौन से वाले पाइप से प्रॉब्लम है ना। अगर ये नहीं होगा और सपोज 100 of pipes are meeting at one place, तो कौन से पाइप से पता करेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है ना। So that's why. Am I clear? Now, through this sewerage system, all the sewage has reached to the wastewater treatment plant. चलो पहुंच गया। अब वहां पर what is happening? Let's find out that in the wastewater treatment plant. ठीक है, how many stages are there? These are the 7 stages. देख के डर लग रहा होगा, but trust me, these are very very easy अगर एक बार समझ के सीक्वेंस में करो तो, ठीक है। We are going to divide these all 7 stages further into 3 different processes: physical process, biological process and chemical process. This we will again discuss at the end. जब एक बार पढ़ लोगे तो खुद ही आप आंसर बता सकते हो इसका, ठीक है। चलो let's get started with the first step. बेटा first 3 step plus 1 more step,
the 4 steps are there which are counted in the physical process. फिजिकल प्रोसेस मतलब जहां पर हम फिजिकल इंप्योरिटीज को बेसिकली हटाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे, द फर्स्ट स्टेज इज व्हेन द रॉ सीवेज इज पास्ड थ्रू द बार स्क्रीन। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जाली टाइप की होती है लोहे की, उसके थ्रू इसको पास कराया जाता है। क्यों? Here we want to remove the bigger impurities. बेटा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में we always go from bigger impurity to smaller impurity, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सबसे बड़ी बड़ी वाली इंप्योरिटीज को हटा दिया सो दैट कि आगे कहीं ब्लॉकेज ना हो, ठीक है। क्या है इंप्योरिटीज? लाइक रैक्स, स्टिक्स, कैन्स, पॉली बैग्स, नैपकिन, सैनिटरी टॉवल, दीज ऑल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाटर गोज टू द सैंड एंड ग्रिट चेम्बर। नाम से पता पड़ रहा है ना। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट हैवी इंप्योरिटी। जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, उनको सेटल करवाना है हमने, ठीक है। सो हियर वी वांट टू सेटल डाउन दी पेबल्स, सैंड्स एंड ऑल, ठीक है। बेटा इसके लिए सबसे मेन चीज है वी हैव टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वाटर। अगर पानी बहुत तेज, बहुत स्पीड से जाके अगर उसमें गिर गया तो क्या होगा? जितनी भी सेटल्ड इंप्योरिटीज है फिर से ऊपर आ जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, है ना। That's why we have to decrease the speed of the water, and that's why we can allow the sand, grit and pebble to settle down in the tank. Once they will settle down, we can clean them occasionally. ठीक है? So these are the 2 steps. Now, after this, this water goes to the next chamber that is called sedimentation. बेटा sedimentation chamber बोलते हैं इसको। ये पक्का आपने sedimentation word पहले सुना हुआ है, सुना है ना क्लास 6 में, sedimentation and decantation, isn't it? Yes. Concept is same. Have a look here. बेटा ये सेडिमेंटेशन जो टैंक है इट इज स्लोप्ड लाइक दिस। व्हाई इट इज स्लोप्ड? क्या सिग्निफिकेंस है इसका? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बेटा सेडिमेंटेशन टैंक इज स्लोप्ड टुवर्ड द सेंटर। अभी समझते हैं क्यों। हियर द सॉलिड लाइक फेशिस सेटल एट द बॉटम एंड विच इज नोन एज स्लज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% you will see somewhere in your examination. What is sludge? Sludge is the settled human feces in the sedimentation tank in WWTP. ठीक है, देखो। और इसको कैसे रिमूव करते हैं स्लज को? एक बार सेटल हो गया पूरा ह्यूमन फिशेज नीचे सेटल हो गया, उसको कैसे रिमूव करेंगे? थ्रू द हेल्प ऑफ स्क्रेपर। एम आई क्लियर? एंड व्हाई इट इज स्लोप्ड हियर? अभी स्लोप मैंने बताया था क्यों है स्लोप। बिकॉज लेट्स से स्लोप ना होके ऐसा फ्लैट टैंक को अब यहां पर नीचे सेटल हो भी गया ह्यूमन फिशेज, ठीक है। बेटा इसके बाद जब ये नीचे डाउन जाएगा तो सिर्फ यहां आसपास का जाएगा ना। इवन देन समथिंग विल बी लेफ्ट हियर इन द कॉर्नर साइड, यस और नो? दैट्स व्हाई, सो दैट द होल फिशेज कैन गो डाउन, दे कैन स्लाइड डाउन, दैट्स व्हाई इट इज स्लोप्ड। एम आई क्लियर? नाउ other than this sludge, there is one more impurity that can be removed in this tank. What is that? Oil and greases. बेटा ऑयल और ग्रीस कहाँ होगा बताओ? नीचे होगा कि ऊपर होगा? Oil and grease are always lighter, so it floats at the surface of water and it is called scum. और इसको किससे निकालते हैं? इसको निकालते हैं स्किमर से, ठीक है। तो इस पूरी स्लाइड में क्या क्या ध्यान देना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द टैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। सेडिमेंटेशन टैंक, इसको प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या सेटल होता है? ह्यूमन फिशेज, दैट इज नोन एज स्लज। हाउ इट इज रिमूव्ड? विद द हेल्प ऑफ स्क्रेपर। टॉप में क्या आता है? ऑयल एंड ग्रीजी मटेरियल विच इज नोन एज स्कम। किससे रिमूव करते हैं? स्किमर से। व्हाई इट इज स्लोप्ड? सो दैट ऑल द स्लज कैन स्लाइड डाउन। एम आई क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आफ्टर दिस द वाटर विच इज लेफ्ट, ये सब रिमूव होने के बाद जो ये पानी बचता है ना बेटा, इसको बोलते हैं क्लेरिफाइड वाटर, ठीक है। एंड इट नेक्स्ट गोज टू द अनदर टैंक, यानी कि 4th वाली स्टेज विच इज कॉल्ड एरिएशन टैंक, ठीक है। देखो अच्छा, यहाँ पे स्लज की एक और बार मैंने डेफिनेशन बताई हुई है, प्लीज हैव अ लुक। द सेटल्ड सॉलिड इंप्योरिटीज दैट इज ह्यूमन फिशेज इन द सेडिमेंटेशन टैंक इज कॉल्ड स्लज। हाउ इट इज रिमूव्ड? विद द हेल्प ऑफ स्क्रेपर, ठीक है। चलो अब बेटा ये स्लज का नीचे जाके क्या हुआ वो हम लास्ट स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं। एम आई क्लियर? वाटर पहले यहाँ का सबसे पहले बार स्क्रीन में गया, उसके बाद ग्रिट एंड सैंड चैम्बर, देन सेडिमेंटेशन, एंड नाउ वेयर दैट वाटर इज गोइंग, let's find it out. Beta, after the 3rd step, that is the sedimentation tank, we get the clarified water. Now the clarified water is passed into this aeration tank. ठीक है, नाम से पता पड़ रहा है here air will come into the picture. यहाँ पर एयर कंप्रेसर है. With the help of this we push more and more air in this tank so that more aerobic bacteria can be formed, can grow. ठीक है, देखो क्या करते हैं यहाँ पे इस वाले में 3rd वाले स्टेप में क्या करा हमने? Whatever the human fishes that was heavy,
that all was settled down and we called it sludge. But still there are some particles na which are not very heavy, हो सकते हैं ना, so we need to remove those also. So what we want here bacteria to grow so that it can decompose that all organic waste. Have a look here कैसे. Here the treatment of suspended sludge takes place. कैसे? In the aeration tank we pump more and more air so that aerobic bacteria can grow. और क्या करेगा वो aerobic bacteria? It will decompose, it will digest the human waste, food waste, soap and other unwanted material. Got it? So here all that aerobic digestion takes place. इसीलिए ये biological process है. बेटा इससे पहले तीनों स्टेप में क्या किया? हमने हेवी इंप्योरिटी को सेटल करवाया. सो दैट वाज ऑल फिजिकल. यहां पर हमने बैक्टीरिया की हेल्प से उसको पूरा डिकम्पोज करवा दिया. सो दैट्स व्हाई इट इज बायोलॉजिकल. गॉट इट? बेटा आफ्टर दिस वाटर इज अलाउड अगेन टू सेटल फॉर सम टाइम. इसको फिर से हम थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं इन द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक. बेटा देखो ये था प्राइमरी सेडिमेंटेशन. यहां पर हमने ह्यूमन फिशेज यानी ह्यूमन वेस्ट को सेटल होने के लिए छोड़ा विदाउट एनी ट्रीटमेंट. Here this is secondary sedimentation tank and here it is allowed to settle down after the bacterial activity, है ना. तो यहाँ पे जो हमको नीचे मिला उसको बोलते हैं स्लज. यहाँ पर जो ये नीचे सेटल होगा इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज. बस इतना ही फर्क है. ठीक है. Here have a look. The water after aeration tank is allowed to stand in the second sedimentation chamber. What happens after several hours? The microbes present get settles down. ठीक है. एंड देन यू गेट द वाटर, क्लियर वाटर अबव. बेटा जो ये वाटर ऊपर मिला ना, इट इज रेडी और फिट टू बी डिस्पोज इन द वाटर बॉडीज. मैक्सिमम इंप्योरिटीज निकल चुकी होती है. अब इसके बाद वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा और इसको डिस्पोज कर देंगे तो. बट इफ यू वॉन्ट टू री यूज इट इन द हाउस होल्ड एक्टिविटी देन कुछ तो स्मेल कभी कभी रह जाती है ना. सो देन यू नीड टू डिसइंफेक्ट इट. यहां पर फिर इसके बाद इस पानी में हम डालते हैं केमिकल्स टू डिसइंफेक्ट एंड दैट्स व्हाई दिस इज द केमिकल प्रोसेस. ठीक है. देयर इज ओनली वन केमिकल प्रोसेस, द लास्ट वन, जहां पे उसमें हम केमिकल को ऐड कर रहे हैं. क्यों करते हैं? देखो, द वाटर रिसीव्ड फ्रॉम द क्लैरिफाई हैज वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सो इट इज सेफ टू बी डिस्पोज्ड. बट समटाइम्स दिस वाटर इज ट्रीटेड विद डिसइंफेक्टेंट लाइक ओजोन एंड क्लोरीन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होने चाहिए दोनों नाम. ठीक है. 1 मार्कर में आ जाते हैं. नेम एनी 2 डिसइंफेक्टेंट. सो ओजोन एंड क्लोरीन. क्लोरीन तो बहुत कॉमन है, सुना होगा, है ना. देखो, it is done to kill any harmful microorganism if they are left and it makes the water clear and odorless. कोई भी स्मेल अगर थोड़ी बहुत रह जाती है तो उसको वो हटाने में हेल्प करता है. ठीक है. सो दीज आर द 6 स्टेप्स. अब बेटा हमने ये जो भी वाटर का था ना वो खत्म कर लिया. वाटर का क्या क्या हुआ, कहां से कहां गया, वट एवर द ट्रीटमेंट वॉज देयर, हमने सब कवर कर लिया. नाउ व्हाट हैपेंड टू द स्लज. यहां से स्लज मिला, यहां से एक्टिवेटेड स्लज मिला, उनका क्या हुआ? लेट्स फाइंड इट आउट इन द 7th स्टेप. दिस इज द 7th स्टेप. बेटा यहां से जो स्लज था और यहां से एक्टिवेटेड स्लज है वो जाता है इस चैम्बर में. इसको बोलते हैं डाइजेस्टर. ठीक है. और यहां पर एयर नहीं होती. सो हियर एनएरोबिक बैक्टीरिया कम्स इनटू द पिक्चर. ठीक है. क्या होता है देखो, द स्लज फ्रॉम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज ट्रांसफर्ड टू अनदर टैंक विच इज नोन एज डाइजेस्टर. हियर एनएरोबिक बैक्टीरिया कम्स इन द पिक्चर और डू द एक्शन. The biogas is produced in this. पता होगा आपको बायोगैस प्लांट, है ना. वही है यहाँ पे कंसेप्ट. यहाँ पर जो भी स्लज गया उसको एनारोबिक बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया, उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है. दैट बायोगैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. गॉट इट. अब उसके बाद जो नीचे का डिकम्पोजिशन हो गया, जो मैटर बचा उसका क्या? बेटा दैट मैटर इज सैंड ड्राइड. उसको हम ड्राई कर लेते हैं. देखो, द वाटर इज रिमूव्ड बाय द सैंड बेड्स और मशीन. यहाँ पे जो भी डिकम्पोज्ड सब्सटेंस था उसको हमने सैंड बेड में डाला, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था रिमूव हो गया. नाउ दिस इज अ वेरी गुड मेन्योर. ठीक है. और इसकी सप्लाई होती है. सो वी आर यूजिंग एवरीथिंग. गॉट इट. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी है, एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं. कौन कौन सी इनमें से फिजिकल प्रोसेस थी? बताओ फिजिकल प्रोसेस कौन कौन सी है. ये था, दिस इज फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल. यहाँ पे क्या था? बैक्टीरिया. सो दिस इज बायोलॉजिकल. अब यहाँ पे सेडिमेंटेशन हुआ, तो सेडिमेंटेशन इज अगेन वी आर जस्ट सेटलिंग डाउन द हेवी थिंग्स. सो अगेन दिस इज फिजिकल, दिस वाज केमिकल एंड हियर इट इज अगेन बायोलॉजिकल. ठीक है. तो देखो कितनी फिजिकल प्रोसेस थी. बार स्किन, ग्रिड चैम्बर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, फिजिकल. ठीक है. बायोलॉजिकल, एरिएशन टैंक एंड डाइजेस्टर टैंक. ठीक है. केमिकल, ओनली वन, दैट इज डिसइंफेक्टिंग टैंक.
ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द स्टेप्स आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल प्रोसेस लाइक दिस। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए? हैव अ लुक हियर। नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस ऑल, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? इफ यू आर एबल टू आंसर, इट मींस यू आर थ्रू विद दिस। ठीक है, देखो क्या स्लोपिंग टैंक, व्हाई देयर इज अ स्लोपिंग टैंक इन दिस सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, स्लोपिंग क्यों होता है? व्हाट इज स्लज, हाउ इट इज रिमूव्ड, हाउ व्हाट इज स्किमर, व्हाट इज द रोल ऑफ स्किमर टू रिमूव द फ्लोटिंग इम्प्योरिटी, जिसको स्कम बोलते हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज एरेशन टैंक, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई इट इज एरिएटेड? टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, है ना ये। व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज, द स्लज विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस क्लैरिफाइड वाटर विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, है ना। और व्हाट इज ड्राइड स्लज, ये वाला ड्राइड स्लज इज बेसिकली अ मैन्योर। बायोगैस, एरोबिक एंड एनारोबिक ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है? एरोबिक एरेशन टैंक, एनारोबिक डाइजेस्टर। ठीक है, why disinfectant, why we disinfect the water at last, why, and name of the disinfectant. So these are some of the common questions that you will see from this topic. Am I clear? So this way we clean the waste water and it can be reused. Any problem? Now beta, now we have to become an active citizen before this treatment plant. beta treatment plant तो एक secondary thing हो गई ना। अगर हम इतना वेस्ट ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो इतना ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, और इतना लोड भी नहीं पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी शुड बिकम एन एक्टिव सिटीजन एंड व्हाट वी कैन डू, वी शुड मेंटेन अ प्रॉपर सीवरेज फॉर हाइजीन एंड सैनिटेशन। अब बेटा हाइजीन का मतलब सबको पता है, व्हाट इज सैनिटेशन? चलो लास्ट में हमको इस पे पढ़ना है पूरा एक टॉपिक, समझेंगे तब। ठीक है, ओपन ड्रेन शुड बी कवर्ड, ये तो पता ही है ना, कोई ऐसे खुली नहीं होनी चाहिए नालियां। उसके अलावा इन द सीवेज ऑफ एनी इफ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, बेटा ये आपने पक्का देखा होगा रूरल एरिया में, गांव में, जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं होता, पूरा वो सीवरेज सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने घर से जितना भी वेस्ट आ रहा है सारा रोड पे छोड़ देते हैं, अपने अगल बगल में छोड़ देते हैं, एंड देन इट इज सच एन अनहाइजेनिक कंडीशन, सो मेनी मस्किटोज ग्रो फ्रॉम देयर, है ना। सो इफ यू सी एनी सच कंडीशन, यू शुड रिक्वेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन और द फैमिली टू डू समथिंग फॉर दैट, है ना। उसके अलावा वी शुड बी एनलाइटन सिटीजन एंड अप्रोच द म्युनिसिपैलिटी और द ग्राम पंचायत। अगर आपके पूरे एरिया में ही ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वी कैन ऑलवेज विजिट द म्युनिसिपैलिटी एंड अपील देम फॉर द प्रॉपर सीवरेज सिस्टम। ठीक है बेटा, इसके अलावा देयर इज वन नेचुरल वे ऑल्सो, पता है क्या? वी शुड ग्रो मोर यूकेलिप्टस ट्री। यूकेलिप्टस ट्री की एक खास बात होती है, दिस ट्री एब्जॉर्ब ऑल द सरप्लस वेस्ट वाटर एंड इवेपोरेटेड थ्रू द ट्रांसपायरेशन। तो उससे क्या होगा, वो जितना भी एक्स्ट्रा पानी वो अगर चला गया तो फिर तो उसके बाद सब ड्राई हो जाएगा ना, जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, नाउ बेटा वी शुड रिड्यूस द लोड ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बाय बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। अब ये व्हाट इज बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, लेट्स फाइंड इट आउट हियर। बेटा हाउ बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस मींस हाउ वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्ट ऑफ दिस वेस्ट वाटर। ठीक है, और वो कहां से शुरू होगा? वो अपने घर से शुरू होगा। देखो कैसे, द फर्स्ट थिंग, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। बेटा हर घर में मैक्सिमम ये होता है, क्योंकि सबको पता नहीं होता, दे जस्ट थ्रो, वो सोचते हैं लिक्विड ही तो है, ऑयल भी तो एक लिक्विड है, जस्ट थ्रो इन द ड्रेन। बट व्हाट हैपेंस स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स, दैट ऑयल गेट्स हार्डन्ड अप, जम जाता है ना वो, उससे होगा क्या, जितने भी पोर्स होते हैं पाइप्स के वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं, and then the blockage in the sewerage system takes place and then it causes the unhygienic condition. ठीक है, so we should not throw the cooking oils and fat. तो कहाँ फेंकेंगे? डस्टबिन में डाल लो, है ना। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? Used tea leaves, solid food remains, soft toy, cotton, sanitary towel, these should not be thrown in the drain. ये तो बहुत कॉमन चीज है ना, कोई भी ऐसे बड़ी चीजों को नहीं फेंकना चाहिए। Other than this, अच्छा क्यों नहीं फेंकना चाहिए? They don't allow the free flow of oxygen and they hamper the डिग्रेडेशन प्रोसेस। अगर ये सब चीज हम डाल देंगे तो होगा क्या, वहां पर जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होना होगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एयर भी वहां पे ब्लॉक हो जाएगी ना। एक तो वो पूरा वाटर को ड्रेनेज को ब्लॉक करेंगे, उसके अलावा एयर का फ्लो भी रुक जाता है। ठीक है, अदर देन दिस द केमिकल्स लाइक पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड शुड नॉट बी थ्रोन अगेन इन द ड्रेन्स। अगर वो जाएगा तो क्या होगा, फिर तो केमिकल लेवल बहुत बढ़ जाता है ना, उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है उस वेस्ट वाटर से, दैट्स वाई। ठीक है, नाउ बेटा सैनिटेशन एंड डिजीज, अभी मैंने बताया था हम सैनिटेशन को एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। सो लेट्स फाइंड आउट अबाउट द सैनिटेशन। बेटा हाइजीन का मतलब तो अपने आसपास की क्लीनलीनेस होती है ना। सैनिटेशन का मतलब होता है, इट जनरली रिफर्स टू द प्रोविजन ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ सेफ डिस्पोजेबल ऑफ ह्यूमन यूरिन एंड फीसेस। उसको हम सैनिटेशन बोलते हैं।
मीन्स हर घर में एक प्रॉपर डिस्पोजेबल सिस्टम होना चाहिए वेयर वी कैन रिमूव आवर वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, एंड दैट रिफर्स टू द सैनिटेशन. बट क्या ये हर जगह अवेलेबल है? यू मस्ट हैव सीन इन द विलेजेस पीपल स्टिल गो एंड डिफिकेट इन द ओपन, है ना? yes, that is the problem. Poor sanitation practices are the major cause of the number of infectious disease in our country. कितनी सारी प्रॉब्लम होती है इनकी वजह से. देखो, safe sewage disposable facilities are still not available in lots of places. So होता क्या है, people go to the open places and defecate, है ना? And this causes the increase in the insect vector population and transmit the disease like cholera, typhoid, meningitis. Beta, meningitis is a problem where there is a swelling in the spinal cord and brain, है ना? बहुत dangerous problem होती है ये भी, ठीक है? So these type of problem occur in the places where there is no sanitation facility, ठीक है? तो इसी को improve करने के लिए इंडिया में भी कुछ ऐसे कैंपेन हुए हैं, and one of that is स्वच्छ भारत अभियान. बहुत सुना होगा, है ना? इतने सारे यू मस्ट हैव सीन टॉयलेट्स. आजकल तो वो मूवेबल टॉयलेट्स भी आते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है स्वच्छ भारत अभियान. एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ फोटो ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, बिकॉज ही ओनली स्टार्टेड दैट. क्या था इसमें, देखते हैं. In the year 2016, the government of India has initiated a new mission known as Swachh Bharat Abhiyan, and under which a lot of drives such as proper sewage disposal, providing toilet for everyone, that was started. ठीक है, क्या था, क्यों करा ये? The aim was to eliminate the open defecation, है ना? ये लोग जो बाहर चले जाते थे ओपन एरिया में, उसको बंद करवाना इसका मेन एम था. And to improve the solid waste management and to create open defecation free villages. Open defecation free villages होने चाहिए, ऐसा इसका एम था. और इसके लिए पता क्या क्या हुआ? इसके लिए villagers were getting 12,000 rupees as an incentive, as a grant you can say, so that they can build the toilets in their home. ठीक है, और इसी ड्राइव में almost 90 million toilets were built up. It was a massive drive, है ना? देखो, so 12,000 rupees were granted to the people in the villages to build their toilets. Got it? और उसके अलावा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सीवेज डिस्पोजेबल वर ऑल्सो प्रोवाइडेड. बेटा देखो, सिर्फ टॉयलेट बनाना ही अपने आप में सैनिटेशन प्रोवाइड नहीं करा सकता. अब तो आपने पूरा पढ़ लिया ना. टॉयलेट बनाने के बाद देयर शुड बी अ प्रॉपर सिवरेज ऑल्सो, और पूरा सिस्टम भी तो होना चाहिए उसको लेके जाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट तक, है ना? बट वो दैट इज नॉट पॉसिबल इन द विलेजेस. सो व्हाट हैपेंस देयर? There comes the alternative arrangement of sewage disposal. ठीक है, अब हम करते क्या, देखो टॉयलेट बन गए, अब वहां से जो सीवेज निकला उसको डिस्पोज कैसे करा जाएगा, उसके लिए अल्टरनेटिव प्लान्स दिए गए. देखो कैसे. द फर्स्ट वन, सेप्टिक टैंक. ठीक है, क्या होता है सेप्टिक टैंक? समथिंग लाइक दिस, वन टैंक, अनदर टैंक एंड थर्ड टैंक. छोटा सा होता है एंड इट इज नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो. ठीक है, इट कैन टेक अप द सीवेज ऑफ ऑलमोस्ट 2 to 3 होम्स. ठीक, क्या होता है? सेप्टिक टैंक इज अ लो कॉस्ट ऑन साइट डिस्पोजेबल. देखो ऑन साइट, दूर नहीं लेके जाना है हमने इसको पूरा डिकम्पोज करने के लिए. अब 3-4 घरों का मिलके उसी के आसपास कहीं पे हो सकता है ये. ठीक है, देखो, सो सेप्टिक टैंक इज अ लो कॉस्ट ऑन साइट डिस्पोजेबल सिस्टम. सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल वेयर देयर इज नो सीवेज सिस्टम. कोई सिस्टम नहीं है वहां पर. एंड दीज टैंक्स नीड्स क्लीनिंग इन एवरी 4 to 6 month. ठीक है, हर 4 to 6 month में इसको क्लीन करवाना पड़ता है. दैट इज द ओनली थिंग. गॉट इट? इसके अलावा बेटा देयर आर केमिकल टॉयलेट्स ऑल्सो. सो अगेन वहां पे होता क्या है, ह्यूमन वेस्ट को में हम केमिकल्स को डाल देते हैं सो दैट ओडर विल नॉट कम एंड इट कैन बी चेंज. उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है बेसिकली. ठीक है, इसके अलावा कंपोस्टिंग टॉयलेट. बेटा कंपोस्टिंग टॉयलेट में क्या करते हैं? हियर द एरोबिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द स्टोरेज टैंक एंड एक्ट अपॉन द वेस्ट एंड टर्न्स इनटू कंपोस्ट. बेटा इस वाले में here there was anaerobic respiration, anaerobic decomposition. देखो पूरा बंद है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एनारोबिक होता है, यहाँ पे हम एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू इसको डिकम्पोज करवाते हैं. ठीक है, और एक और है दैट इज बायोगैस प्लांट. वो तो पता ही है ना? इसमें क्या करते हैं? ऑल द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज डायरेक्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बायोगैस प्लांट. वहां पे वो डिकम्पोज होता है, उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल एंड देन इट कैन टर्न इनटू मैन्योर ऑल्सो. ठीक है बेटा, other than these there is one major sewage disposable system that is called vermi processing toilet and it is nowadays a big hit. देखो क्या होता है इसमें, नाम से पता पड़ रहा है बेटा, इसमें worms का यूज होता है, अर्थ worms का यूज होता है फॉर डिकम्पोजिंग. ये देखो पिक्चर से पता पड़ रहा होगा. A design of the toilet in which human excreta is treated by the earth worms. यहाँ पे एक चैम्बर बना हुआ है, इसके अंदर सारा का सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा जाता है और इसके अंदर होते हैं ये अर्थ वर्म.
So earthworm decomposes all the human waste and turns it into the wormy cakes. ठीक है, इसको वर्मी केक बोलते हैं. देखो, it has been found to be a novel and low water use toilet for the safe processing of human waste. The operation of the toilet is very simple. सिर्फ वहां पे अर्थवॉर्म चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए. ठीक है. Here the human excreta is completely converted into wormy cakes, a resource much needed for the soil. Means जो ये डिकम्पोज करने के बाद नेक्स्ट मटेरियल बनाते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी गुड मैन्योर. Am I clear? So बेटा, this was all about the sanitation in the household area, जहाँ पे हम 2-3 घरों की बात कर रहे हैं and the sewerage system is not there. But other than this, there is one more place where sanitation is required, and that is the public places. Beta, what is the difference between the sanitation in the household area and this public places? Beta, in household area, the human waste is produced in small quantity. But in public places, there is a generation of large amount of human waste at a time. और फिर होगा क्या, अगर ऐसी जगह पर सैनिटेशन नहीं हुआ, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हुआ, तो दैट विल लीड टू द सेवरल डिजीजेस और इवन एपिडेमिक ऑल्सो. ठीक है. सो दैट्स वाई वी शुड अडॉप्ट अ सर्टेन प्रैक्टिसेस और कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग दिस सैनिटेशन. हम क्या कर सकते हैं बेटा? वी शुड नॉट लिटर अराउंड, है ना. वी शुड नॉट थ्रो द पैकेट्स एंड चिप्स पैकेट एवरीवेयर इन द पब्लिक प्लेसेस. वी शुड ऑलवेज थ्रो देम इन डस्टबिन. अदर देन दैट, वी शुड नॉट स्पिट अराउंड, है ना. अब मैं इधर तो जाके ऐसे नहीं स्पिट करना चाहिए. And also we should consider cleanliness after using the public toilets. Very very important. बेटा देखो, अगर आप किसी पब्लिक टॉयलेट में गए और if you will find it dirty, you will feel so disgusted. The same thing you should also not do for others. So after using, you should always maintain the cleanliness there. Got it? So this was all we were supposed to cover in this video. Though this was an easy chapter, but yes, some terms are difficult. So practice them more and more. Even then, if you're having any doubt, I'm always there. You can comment. I will try to revert back. Got it? So all the best for examination. We will meet soon. Take care and bye-bye.